सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are going to learn and see the solution of exercise 2.4. This exercise is written as optional. In polynomials chapter there is exercise 2.4 and you will see that there is written here optional. Means it is upon you whether you want to solve the questions from this exercise or not. This is not mandatory. But I think that the most tricky, and some students say that the most hard questions are asked in this exercise. So I have taken this exercise and we are going to solve question number 2. First of all, we read the questions and after then you will see the solutions. There are very, I like these questions in that exercise, and I think you will also like that questions whenever you will learn and understand the solution of this question or these type of questions. So once again I say you that whenever you see the videos, I have come to know through the reliable sources that you are not seeing the full videos. Then how can I expect from you that you will be able to solve these type of questions in the examination or board exams? So once again I want to say you that whenever you click the video and questions you like, then see the full video. Okay, so let us first of all we read the question and try to understand the question, and after then you will see the solution of this question. So here it is written that find a cubic polynomial. It means that we have to find a cubic polynomial. What is given? With the sum of the product of its zeros taken 2 at a time, and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. It means that we have to find out a cubic polynomial in which sum of zeros are 2, means alpha plus beta plus gamma equal to 2, because this is a cubic polynomial and here we shall find 3 zeros. So sum of zeros is 2. Product of its zeros taken 2 at a time, means there is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to -7, and product of its zeros means alpha beta gamma, alpha into beta into gamma, is given as -14, and we have to find out the cubic polynomial, suitable cubic polynomial. So let us see the solution. Let's start here. First of all, we write here, let Px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and its zeros are alpha, beta and gamma. Okay, since there is not given polynomial, we have to find out the polynomial, and we know that general form of a cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, and we have taken here 3 zeros, alpha, beta and gamma. Now according to question, alpha plus beta plus gamma equal to
here it is given 2 equal to minus 2 by 1 equal to minus b by a। यहां पे हमने माइनस 2 क्यों लिया? इसलिए कि हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस तो हमको लेना होगा ना, तो माइनस जब लेंगे तो अंडर ब्रैकेट भी माइनस लेंगे, तभी ये ब्रैकेट रिमूव होने पर ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिया, यानी कि हमारा b का वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इट इज गिवन हियर -7 इक्वल टू -7 by 1 we can write equal to c by a, and alpha beta gamma equal to, it is given -14, so it is -14 equal to -14 by 1 equal to minus d by a, we can write here, right? अब हम लोग जो है यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि हर एक जो है ये सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये सब में होल नंबर है, मतलब इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हैं, तो इसमें जो है बाई 1 हमने किया तो सभी में बाई में क्या है, a है, तो डिनोमिनेटर में a है, यानी कि सब में 1 है, इट मींस कि a इक्वल टू 1, तो हम लोग यहां लेंगे इफ a इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू -2 हमने बताया अभी, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, c इक्वल टू -7, एंड अब यहां पे -d इक्वल टू -14, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, तो d इक्वल टू 14। ठीक है, so the required cubic polynomial fits in fits into it is, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे उस फॉर्म में लेंगे ax3 1 into x3, सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे, प्लस bx², b के जगह -2 x² प्लस cx, तो प्लस c के जगह हम लोग रखेंगे -7 इंटू x, एंड d के जगह रखेंगे 14, तो प्लस d यानी +14, that is 1 into x3, तो x3 -2x², फिर -7x प्लस 14, तो इस तरह से हमारा ये जो है हमको क्या कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला, तो x3 -2x² -7x प्लस 14। अब आप 1 मिनट चेक करके देख लीजिए एक कोई, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो -b/a कितना आ जाएगा, -b/a इक्वल टू माइनस, और b कितना है हमारा, b अभी हम आया था -2, तो -2/a1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2,
तो ये हमारा आ गया b। तो इस तरह से ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन 2 is question number 3 and this is also a very tricky question and easy question. There is solution of this question is easy. What do you feel? I don't know, but I think that it's easy but a little bit tricky. So here proceed further and see the solution. Question is here, if the zeros of the polynomial and means that zeros of the polynomial given polynomial is x cube minus 3x square plus x plus 1 and its zeros are a minus b, a and a plus b, then we have to find a and b. So let's see the solution here. First of all we denote this polynomial by px, so let the polynomial given be px equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 and let its zeros be alpha, beta and गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाइट नेचुरल है कि इसके 3 जीरोज होंगे एट मोस्ट, तो तीनों जीरोज हमने ले लिया। आगे हम लोग देखते हैं तो, और इसमें दिया भी है 3 जीरो, 1 है a माइनस बी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस बी। तो अल्फा, बीटा एंड गामा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस b। So sum of zeros equal to alpha plus beta plus gamma equal to, अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख देंगे, तो a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू, अब सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, हम लोग पढ़े हैं। तो यहां पे माइनस बी बाई ए, तो माइनस, फिर बी के जगह क्या है -3, तो -3 बाई, और ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंप्लाइज, अब यहां पे b जो है प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए यानी 3a इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंप्लाइज a इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो a हमारा आ गया 1। नाउ अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to a माइनस बी, अल्फा है a माइनस बी और उसका बीटा है हमारा a, तो इंटू a प्लस फिर बीटा गामा, तो a इंटू गामा है a प्लस बी प्लस गामा अल्फा, तो गामा है हमारा a प्लस बी और अल्फा है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
taken 2 at a time, sum of the product of zeros taken 2 at a time, है ना, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका सम। लेकिन इनका सम एक्चुअली होता कितना है हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो c बाई ए, तो c बाई ए हमारा क्या है, c कोफिशिएंट ऑफ x क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में होता है c कांस्टेंट टर्म, क्यूबिक के लिए c होता है x वाले टर्म का कोफिशिएंट, तो 1 और बाई एक्स क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट, तो इसका भी 1 है, तो बाई 1 इक्वल टू 1 इंप्लाइज, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी तो माइनस ए बी, फिर प्लस, अब a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a से b को करेंगे तो प्लस ए बी, प्लस a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये एक आइडेंटिटी है, तो यहां लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंप्लाइज। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर आ गया हमारा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंप्लाइज, अब a के जगह 1 रख देंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंप्लाइज 3 माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बी स्क्वायर को हम लोग उस साइड ले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे, तो इंप्लाइज कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंप्लाइज बी इक्वल टू प्लस माइनस √2, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आया है, वैल्यू हम लोग का 1 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी सॉल्यूशन है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है, और इस तरह हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए ये सोचना कि बहुत ही भारी है या टफ है, हमको दिक्कत करेगा, तो नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, बिल्कुल सॉल्व होगा और इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।